کو جو ہے لقب ملا ہے, مطلب دی ٹری مین آف پاکستان کا جو ہے شہروز ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو لقب ملا ہوا ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی, آپ میرے پروگرام میں اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں اور ہماری کافی مطلب ڈیپلی ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کیونکہ آپ اپنی ٹیم جو ہے پوری اس کے ساتھ آئے تھے. تو میں چاہوں گی کہ آپ مجھے بتائیں جس طرح سے ابھی آپ نے بیچ میں جو ہے پودے لگا رہے تھے کہ گورنمنٹ کا کوئی کولیبریشن ہے آپ کے ساتھ, آپ لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں کام؟ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے دوبارہ پروگرام میں بلایا ہمیں, اور یہ وہ موضوع ہے جس پہ اس وقت بات کرنی ضروری ہے کیونکہ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ لاسٹ منتھ سے کراچی کے مختلف شراہوں پہ جو درخت لگے ہوئے تھے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. جی ہاں. اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا, جیسے ابھی اوشین مال کے سامنے کافی تعداد میں درخت لگے ہوئے تھے. اس وقت گرمی شروع ہونے والی ہے, لوگوں کو سائے کی ضرورت ہے جی. اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ اقدامات دیکھتے ہوئے رمضان بھی قریب ہے, رمضان بھی قریب ہے اور بالکل وہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اوشین مال کے سامنے کاٹ دیے گئے. سیفی ہاسپٹل جو ہے جیسا اپوزٹ کیڈیا چورنگی وہاں پہ درخت کاٹ دیے گئے, کلندریا کی طرف وہاں پہ درخت کاٹ دیے گئے. تو اس متعلق آپ کا پروگرام ہے, تو میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہی کہوں گا کہ میسج یہی فارورڈ کروں گا جو درخت کاٹے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہی یہی تھا, ملینس ٹری, سونامی ٹری. اور تو جب وہ ویژنس ہے تو جو لگے ہوئے درخت ان کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے میرا یہاں کے انتظامیہ سے, لوگوں سے, کہ جو لگ گئے ہیں ان کو لگے رہنے دیں, کاٹنے کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ درخت وہ واحد چیز ہے جو کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, فائدہ ہی دیتے ہیں. ہر صورت آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں درخت, چاہے وہ آکسیجن کی صورت میں ہو, چاہے وہ سایہ کی کرتے ہیں تو آپ کو کتنا اچھا فیل ہوتا ہے, آپ مطلب ٹھنڈی ٹھنڈے ایک تو وہ ماحول مل رہا ہوتا ہے آپ کو, ان کے درخت جو ہے وہ سایہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ ایک کھلی فضا میں جب سانس لے رہے ہوتے ہیں, واک کر رہے ہوتے ہیں, ایک اچھا ایک ماحول ملتا ہے آپ کو. لیکن اس کے باوجود اگر آپ درخت کاٹ دیں گے تو پیٹرول اور اس کی جو ہے پولوشن, یہ سب چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اچھی صحت کا جو راز ہے نا وہ اچھی آب و ہوا, اچھی فضا ہے. جب ہمارے ارد گرد اچھا ماحول ہوتا ہے, اچھی آب و ہوا, اچھی فضا اور ہریالی جب دیکھتے ہیں تو ہمارے جو بلڈ پریشر ہے, جو ڈپریشن ہے, جو ٹینشن ہے, وہ کم ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی پارک یا گارڈن کی بات کر رہی ہیں تو درخت سے جو تعلق جڑا ہوا ہے وہ تتلیوں کا بھی جڑا ہوا ہے, پرندوں کا بھی جڑا ہوا ہے, خوبصورتیوں کا بھی جڑا ہوا ہے, فلاورز بھی نظر آتے ہیں. تو ہم جب پارک میں جاتے ہیں واک کرنے یا شام میں جب اس کو انجوائے کرنے جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کراچی شہر کے اندر ایک تو پارکس بہت کم ہیں, جو پارکس ہیں وہ بھی اجاڑ ہیں کیونکہ اس شہر کے اندر لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا, تو وہ پودوں کو پانی کہاں سے ڈالیں, درختوں کو پانی کہاں سے ڈالیں. تو اس چکر میں اس پہ بھی ہم نے کام کیا. میں ایک تھوڑی سی کوشش کی اپنے حساب سے کہ سورس آف واٹر کیسے ہم بچائیں ان پودوں کے لیے. تو اکثر عیدگاہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد ہوتی ہے وہاں پر, تو گراؤنڈس ہوتے ہیں وہاں پر, مسجد ہوتی ہے. جو وضو کا پانی جو ہمارا ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو نالیوں میں جا رہا ہوتا ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس وضو کے پانی کو بچا کے اپنے گراؤنڈز اور پارک میں لے کے آئے تاکہ وہاں پر ہم پودے اگا سکیں, وہاں پر ہریالی کر سکیں. لاسٹ ہم نے جو اپنا اربن فارسٹ کہتے ہیں, مصنوعی جنگل, شہر کے بیچ میں ایک مصنوعی جنگل بنانا جو کہ ہمارے شہر کے اندر ایک لنگس کا کام کرتے ہیں, ہوا کو فلٹر, آکسیجن کو فلٹر کرنے کا کام کرتے ہیں. جو ہماری ہوا, ہمارے آب و ہوا کے اندر جو میتھین گیس اور مختلف زہریلی گیس, جیسے آپ نے بتایا پیٹرول ہے اور آپ کو دھول مٹی نظر آتی ہے, تو اس سے جو چڑچڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے, تو اس ماحول کو اچھا کنٹرول کرنے کے لیے اربن فارسٹ, شہر کے بیچ میں مصنوعی جنگل بنانے کی چھوٹی سی کوشش ہم نے کی ہے. نارتھ کراچی کے اندر ڈی ایم سی سینٹرل کے اندر, وہی وہاں پر تھا پورا گراؤنڈ بنجر پڑا ہوا تھا, وہاں پر پانی نہیں ہے تو نہ گھاس ہوگی نہ پودے ہوں گے. تو برابر مسجد تھی, ہم نے مسجد انتظامیہ سے بات کی جو آپ وضو کا پانی نالوں میں ضائع کر رہے ہیں تو وہ آپ ہمیں گراؤنڈ میں دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی ہمیں اپریشیٹ کیا, اچھی بات ہے کہ آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے وہ وضو کا پانی لے کے ہم گراؤنڈ کے اندر لے کر آئے اور الحمدللہ 6 months ہو گئے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ایک اچھا فارسٹ نارتھ کراچی کے اندر تو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا, مطلب ابھی آپ لوگوں کا یہ پروسیس میں کیونکہ ایک فارسٹ کو بنتے 3 سال لگ جاتے ہیں. ایک اچھا بڑا جنگل نظر آتا ہے. کتنا بڑا آپ نے بنایا؟ ابھی تقریباً ہم نے جو 40 by 40 میٹر ایریا لیا ہے پورا فارسٹ بنانے کے لیے. تو اس میں کوئی آپ لوگ اینیملس وغیرہ بھی رکھیں گے؟ اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے اس قسم کے پلانٹس لگائیں جس میں تتلیاں ہیں, جس میں پرندے آئیں, جس میں پھل ہیں, پھول ہیں. کیونکہ یہ جب ہوں گے نا تو آپ کو تتلیاں بھی نظر آئیں گی, جہاں پر پھول ہوں گے, جہاں پر پھل ہوں گے وہاں پرندے بھی نظر آئیں گے. اور ان کیس ہماری کوشش یہ ہے کہ ریسنٹلی ہم نے اپنے ایم پی وسیم قریشی صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ اس پارک کو ہمیں اڈاپٹ کر دیا جائے, کہ محلہ کمیٹی ہی اس کو اڈاپٹ کر لے. کیونکہ جب گورنمنٹ کے پاس فنڈس نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, جب وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں شیورٹی ہو جائے کہ یہ ہماری اونرشپ میں آ گئی ہے, تو لوگ اس پہ انٹرسٹ بھی لیں گے اور اپنے مدد آپ کے تحت اس کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش بھی کریں گے. تو اس میں گورنمنٹ کا آپ کے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا کسی قسم کی کوئی کولیبریشن نہیں ہے. گورنمنٹ کہیں سے کسی طریقے سے کسی بھی فورم پہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اوکے, تو مطلب آپ لوگوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی ان سے ملاقات کی, کوئی میٹنگ ہوئی, آپ لوگوں کے جو پلانس ہیں آپ لوگوں نے گورنمنٹ سے ڈسکس کیے, تو ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ جب تک بلدیاتی سیٹ اپ تھا یہاں پر, جب چیئرمین تھے ڈی ایم سی سینٹرل کے محمد ریحان ہاشمی بھائی, تو ان سے کولیبریشن سے ہم نے ڈی ایم سی سینٹرل کے اندر
3 अर्बन फॉरेस्ट यानी कि मसनूई जंगल बनाने की कोशिश की। एक हमने नॉर्थ नाजिराबाद के अंदर फतेहाबाद पार्क है वहां पर बनाने की कोशिश की, क्योंकि फॉरेस्ट बनाना तो आसान है कि मैं आऊं और 1000 पौधे लगा के चले जाऊं, इसको लेकिन मेंटेन करना, लुक आफ्टर करना और वाटर सोर्स ऑफ वाटर होना वहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाए, आरिफुल्लाह हुसैनी साहब वहां थे, उन्होंने फतेहाबाद के अंदर एक सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था। उस ट्रीटमेंट प्लांट के बिहाफ से हमने वहाँ फॉरेस्ट बनाया। पर ये है वही बात जिसे कहते हैं ना कि हमने तो बनाया उनकी ओनरशिप पे, जब तक रेहान हाशमी भाई थे सिटिंग पर्सन वहां पर थे, वो फॉरेस्ट भी अच्छा था, लेकिन अब जितने पौधे हमने वहाँ पे लगाए थे उसके 60 to 70% अभी हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि हम खुद भी उसको फॉलोअप लेते रहते हैं, बार बार जाके कुछ खराब हो जाता है तो चेंज कर देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी अपनी पूरी कोशिश है कि हम उसको कामयाब कर लें। अच्छा, गवर्नमेंट ने किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है उन्होंने ये पौधे शजरकारी की है? डीएमसी सेंट्रल के हवाले से तो मुझे फेडरल भी एरिया का पता है कि वहां पर उन्होंने डॉक्टर कवल निजामी उनके साथ मिलकर एक फॉरेस्ट बनाया। ठीक है, उसके अलावा अभी सीव्यू के ऊपर मुर्तजा वाब साहब बना रहे हैं फॉरेस्ट। ये सही। अच्छा, जो आपकी जो टीम है ज्वाइन हैंड्स, आपके सॉरी ग्रीन हैंड्स जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर आप लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या फिर मतलब आप लोग कोई दोस्त अहबाब या कोई रिश्तेदार सब लोग मिलके आप लोग ये कर रहे हैं या कोई बाहर से आपको किसी तरह की कोई फंडिंग हो रही है? मैम स्टार्टिंग तो हमने बिल्कुल, मैंने इनिशियली जो स्टार्टिंग किया था वो आपने देखा होगा 2015 में जब हीट वेव्स आया था तो कराची शहर के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग घरों पे महसूर हो गए थे। तो उसी वक्त एक मुहिम चली थी ना कि दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ, दरख्त लगाओ मुल्क बचाओ। तो हम अपने मस्जिद के दोस्तों के साथ थोड़ी सी एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे थे और बोले थे ना तस्वीरें नहीं खींचो इसकी ना, ये रियाकारी में आएगा, सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हम लोग प्लांट्स लगा रहे थे तो 2-3 दोस्त हमारे, तो उन्होंने पिक्चर्स भी ले ली। जब पिक्चर्स ले ली तो उन्होंने ऐसी सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो एक प्लेटफॉर्म होता ना कि उस वक्त मुझे कहा जाता था कि ये कौन है, इतने पौधे लगा, उस वक्त मैंने 5 पौधे लगाए थे खाली। जब मैं पूरे शहर के अंदर वायरल हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर कि शहरों से पौधे लगाते हैं, इस वजह से इसकी अवेयरनेस से फिर लोग मुझसे जुड़ने लगे। मेरा कुलीग है एनू रजा, वो फर्स्ट डे से मेरे साथ है, सोएब सिद्दीकी, अब्दुल बासित है, ये वो लोग हैं जो मकामी कराची शहर के अंदर रहते हैं और ये लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं एक्टिविटी के अंदर। और मुझे यहाँ तक पहुंचाने में एक आम लड़का है शहरों से, मुझे ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो रेहान सिद्दीकी भाई है, जो न्यू जर्सी के अंदर रहते हैं। वो बंदा था, वो विजन लेके आया था, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम जुड़े साथ ना। उस बंदे ने मुझे विजन समझाया, ग्रीन पाकिस्तान सेफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान ग्रीन होगा तो सेफ होगा, तो इसको ग्रीन बनाओ, सेफ बनाओ, उसको महफूज बनाओ। तो मैंने कहा रेहान भाई मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं तो यूसी लेवल पे काम कर रहा हूँ। बोले नहीं, आज तुम यूसी पे हो, कल तुम पूरे शहर में हो गए, परसों तुम पूरे मुल्क में काम करोगे। तो मैंने रेहान सिद्दीकी भाई से कहा रेहान भाई इट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा तुम करो काम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सोर्स ऑफ इनकम जो इसे कहते हैं ना, प्लांट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए, हमने कभी भी अपने हल्के से ये नहीं कहा कि हमें आप प्लांट्स प्रोवाइड करें। हमारा अपना छोटा सा सर्कल है, एनू रजा हो गया, सोएब भाई हो गए, रेहान सिद्दीकी हो गए, हम लोग मिलके ही अपने सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं और महीने के प्लांट्स वगैरह हम लगाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से हम प्लांट्स लगाते गए। जब हमने प्लांट्स ज्यादातर लगाना शुरू किए ना इलाके में, पार्क्स में, तो हमने फिर एक चीज नोट किया कि लोगों में इसकी अवेयरनेस भी देनी चाहिए प्लांटेशन, क्योंकि मैं और आप मिलके कितने प्लांट्स लगा लेंगे, 1 लाख लगा लेंगे, 2 लाख लगा लेंगे, 3 लाख लगा लेंगे, लेकिन अगर हमने यूथ को तैयार कर लिया प्लांट्स लगाने में, हमने 1, 2, 3 शहरों और बना लिए, तो वो फिर पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को भी हरा भरा करने को तैयार हो जाएंगे। तो अब हमें यूथ कहाँ से मिलेगी? यूथ ढूंढने के लिए हम फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज गए, वहां पर हमने बच्चों से डिस्कशन किया, प्लांटेशन के हवाले से उनसे अहमियत पूछी, उनको अहमियत बताया हमने, क्योंकि अक्सरियत हमें ये बताती है कि दरख्त लगाने का एक फायदा ये है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे तो बोलेंगे ओजोन लेयर और ग्लेशियर। हम उसके आगे की बात भी बताते हैं कि देखो मुल्क और कौम के लिए जान देने को हर कोई तैयार है जी। मैं ये नहीं बोल रहा आपसे, मैं जान नहीं मांग रहा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप पूरे इलाके का कचरा उठा लो, सफाई कर दो, लोगों को रोजगार दे दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अपने हिस्से का एक रोल अदा करो, एक दरख्त लगा लो, क्योंकि किसी भी मुल्क की कामयाबी के लिए 25% फॉरेस्ट होना जरूरी है। और आज से 10 साल पहले जब मैंने स्कूल लाइफ में पढ़ा था तो 4% समथिंग था, और मैंने अपने बड़ों से सुना है कि उन्होंने जब 20 साल पहले पढ़ा था तब भी 4% समथिंग था, और आज भी वो 4% समथिंग ही ये फॉरेस्ट है हमारा। तो हम कहते हैं कि हम फॉरेस्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम अपने घरों पे जो है क्यारियां हैं
वहाँ पर पौधे लगा लें, मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल मेंटेन कर ले। लेकिन एक और बदनसीबी ये है कि जब कार लेकर आ जाते तो हम अपनी क्यारियों को रिमूव कर देते हैं। वहाँ पे हकीकत बात है, क्योंकि स्पेस ही नहीं रहे, जगह जगह पे इतने इतने घर बन चुके हैं, और हमें पता नहीं हमारे डिपार्टमेंट जन कैसे इजाजत दे देते, 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला बना रहे होते। ये भी एक मतलब एक है हमारे कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स की भी इजाजत है, जिसमें एसबीसी बहुत मतलब सारे फहरिस्त है, वो लोगों को इजाजत दे देता है कि आप लोग जो है बाहर गलियां कंजेस्टेड हो गई हैं। डिस्कस करूं कि अगर 20 साल पहले हम जाते तो हमारी दादी नानी के घरों पे एक दर हुआ करता था आम का, अमरूद का। हम स्कूल्स में जाके डिस्कस करते थे कि मैं दादी के घर में अमरूद का दरख्त है, आम का दरख्त है, आम का दरख्त आता है, मैं जामुन तोड़ता हूँ। और आजकल के बच्चों के पास वो चीज ही नहीं है, वो दरख्त ही नहीं है। गलीज ऐसी वीरान पड़ी हुई, वहाँ पे क्यारियां ही नहीं है, लोगों ने कार लागी खड़ी की भी है। मैं उनको बताता हूँ, चलो आपने कार लागी खड़ी, वो भी आपकी जरूरत है, ठीक है, आप इंडोर प्लांट्स पे आ जाए। आप अपने कमरों के अंदर इंडोर प्लांट रखें। इंडोर प्लांट्स को कहते हैं मनी प्लांट। मनी प्लांट एक पत्ते वाला प्लांट कहलाते हैं, लेकिन मनी प्लांट का मतलब ये है कि इंडोर प्लांट सारे वो प्लांट्स होते हैं जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं। आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं, आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, वहां पर कार्बन गैस खारिज हो रही है। तो इंडोर प्लांट्स अपने कमरों में रखें आप, और उसको आपका माहौल अच्छा हो जाएगा। आप क्लास में जाएं, आप अपने रूम में जाएं, आपको पहले देखा हो डाइनिंग टेबल के ऊपर मनी प्लांट का जार रखा होता था। पहले जमाने में लोग अपने पूरे घरों में मनी प्लांट लगा लिया करते थे, वो फैलती रहती थी, बढ़ती रहती थी, अच्छा लगता था, फ्रेश होता था, मूड स्विंग होता था। उनको देख के वो हरियाली देख के बंदा जाएगा मतलब। और फिर पर आज के दौर में लोगों का ये इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो हमने बहुत कोशिश की, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लोगों को खींच के लेकर आए कि इस तरफ आगे वो मोबाइल की दुनिया से निकलो, पोस्टर शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आजादी नहीं मिलेगी। हम भी एक काम करो, हम तुमसे कोई मजदूरी नहीं करा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक पौधा लगाओ। और ये पौधा लगाना से मुल्क के लिए नहीं, आपकी आखिरत का भी जरिया है, क्योंकि ये एक सदका जारी है। आप यकीन माने, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जब भी हमारे सोसाइटी में किसी का इंतकाल होता है, आपने देखा होगा कि अगले दिन कब्र पे जाके हम उसके एक पौधा लगाते हैं। बिल्कुल। उस मुर्दे को उसकी साई की भी जरूरत नहीं है और उसके फल फूल की भी जरूरत नहीं है। उस मुर्दे को उसकी सवाब के लिए हमने लगाया कि उसका सवाब उसको मिले। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगियों में अपने हाथों से एक पौधा लगा लें कि भाई मैं जी रहा हूं तो एक सवाब के लिए सदके जारिया लगा लें। गैस, बिजली, टेलीफोन हम यूज करते हैं, उसका बिल पे करते हैं। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो क्या उसके रिटर्न में हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। गाड़ियां हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज कर रही है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, मुख्तलिफ पोल्यूशन है शहर के अंदर। वो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए ना। देखिए, इस चीज की अगर हमने अभी कदर नहीं की ना, तो बहुत से ममालिक में ऐसे शहर मौजूद है कि वहां पर अगर आपने सिर्फ 24 आवर्स गुजारे तो समझे आपने 40 से ज्यादा सिगरेट पी हो, यानी कि आपके लंग्स, आपके फेफड़ों का ये हाल हो जाएगा। हम अपने आने वाली नस्लों के लिए कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा अच्छी गाड़ी में घूमे, उसको अच्छी तालीम मिले, उसको अच्छा घर मिले, तो उसको अच्छी आबो हवा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपने ये मुहावरा भी सुना होगा कि दरख्त लगाने वाला कभी उसके साए में नहीं बैठता। तो कल को किसी ने दरख्त लगाया तो आज उसके साए में हम बैठे हुए, उसका फल हम खा रहे हैं, हम उसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपने आने वालों नस्लों के लिए एक बेहतरीन तोहफा के तौर पे एक हरा भरा शहर, हरा भरा मुल्क उसको दे सकते हैं, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट का रोल अपनी जगह है, जरूरी है गवर्नमेंट है, लेकिन इंडिविजुअली बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 22 मार्च जो है वाटर सेविंग डे है, तो पानी को किस तरह से सेव किया जा सकता है? मैंने अपनी जो लाइफ है मेरी छोटी सी, मैंने उसके अंदर भी ऑब्जर्वेशन की 3 टाइम्स, यानी कि पानी को सेव करने की कोशिश। पहली, मैं अच्छा वाकया मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 2018 था, सही है, और 2015 से 2018 के बीच में बारिशें नहीं हुई थी। आपने नोट की होगी, आज शहर में गर्मी बहुत थी, लोग काफी दुआएं मांग रहे थे, बहुत दुआएं मांग रहे थे। तो सुबह के 6:30 बजे मेरे पास एक्स चेयरमैन रेहान हाशमी भाई का फोन आया। सुबह की वो देखते रहते थे एक्टिविटी, सब प्लांटेशन के हवाले से करते रहते हैं मुख्तलिफ पार्क और जगहों के अंदर। सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आया रेहान भाई का कि शहरोज कहाँ हो। मैंने कहा सर घर पर सो रहा हूँ, तो अर्जेंट मीटिंग करनी है, एक चीज हमने डिस्कस की है, वो तुम्हें बताना है और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है। तो हम पहुंच गए सुबह रेहान भाई के पास, डीएमसी सेंट्रल के ऑफिस पहुंचे तो देखा कि वो वहां पर जो वर्किंग कर रहे थे अपना A to Z। उन्होंने हमें बताया, उस वक्त 2018 की बात बता रहा हूँ, कि जो उनकी एनवायरमेंट की जो टीम थी ना, एनवायरमेंट की जो टीम है, उनसे उनकी डिस्कशन ये हुई है कि अगर बारिश के पानी को बंद बांध के हम पार्क और ग्राउंड में जमा कर लें तो वो सबसॉइल वाटर होता है, वो जमीन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। उससे हमारी बोरिंग में फर्क आएंगे, डिफरेंस आएगा। जो इलाकों में जो आप बोरिंग आज देख रही हैं, आप 200 फीट 250 फीट पे चले गई। आज से 20 साल पहले कराची शहर के अंदर कुआं हुआ करता था 10-10, 15-15 फीट का, और मीठा पानी होता था उसके अंदर। और आज देखें आप 200-250 फीट पे चले जाती है आपकी बोरिंग और खारा पानी निकलता है। तो उन्होंने कहा ये ऐसे बंद मान के ऐसे पार्क जिसमें सेम फ्लोर ना हो, एक तो सेम फ्लोर वाले में तो पानी एब्जॉर्ब होगा नहीं, पर ऐसे पार्क और ग्राउंड जहाँ पे सेम फ्लोर ना हो वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हमने उनकी बात सुनी
पर हमें समझ में नहीं आया। पर हमने कहा एक बड़ा आदमी जब ये चीज कह रहा है तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक उसके पीछे होगी। होगी। तो हमने अपने इलाके में ही एक छोटा सा बंद माना, चढ़ाई से जो पानी आ रहा था बारिशों का वो ग्राउंड की तरफ ले गए। तो लोग मजाक उड़ाने लगे कि यार अगले दिन यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा और डेंगू हो जाएगा और फलाना डमाना हो जाएगा। मैंने चलो अगले दिन देखेंगे क्या हुआ। आप यकीन माने वीडियो मौजूद है फेसबुक पे, ऑन द स्पॉट मौजूद है, शहरों सिराज के नाम से मेरी आईडी है, आप चेक कर लीजिएगा उसमें। तो ना 24 आवर्स के बाद उसी जगह की मैंने वीडियो बनाई जहां पर मैंने तालाब बना दिया था जिस पार्क के अंदर, वो 24 आवर्स बाद वहां पानी का नामो निशान नहीं था। मैंने पांव से मिट्टी उड़ाई हो। तो आपको पता है ऐसे बारिशें नहीं हुई तो पानी, जमीन को भी पानी चाहिए। इस कदर पानी की कमी हो गई है कि मतलब उन दिनों हो गई थी कि पानी, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी, इतना ड्राई वो सब चीजें हो गई थी, जमीन हमारी खुश्क हो गई थी पूरी। तो असल में देखिए, तो हमने कोशिश करके पानी अपने ग्राउंड में जमा कर लिया। देन ये कि जो पानी जमीन के अंदर हमारे नहीं जा रहा है उसके लिए मेन किरदार जो उसको बर्बाद करने में ना जमीन को प्लास्टिक का। हम कहीं पे भी पिट्स लगाएं, कहीं पे भी गड्ढा करें, जमीन के अंदर से निकलती है प्लास्टिक। जब प्लास्टिक होगी तो वो सब सॉइल वाटर वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो आपके प्रोग्राम से, आपके चैनल से और आपको ही मैं ये कहूंगा कि माशाल्लाह लोग मुख्तलिफ आपके हैं लिंक्स, तो आप उनको जहाँ इस्लामाबाद और लाहौर जो पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ शॉपर बैग्स पर पाबंदी लगी हुई, तो कराची वालों ने क्या गुनाह किया हुआ? यहाँ क्यों नहीं, क्यों लाहौर इस्लामाबाद की जिंदगी नहीं गुजार रहे शॉपर बैग पर पाबंदी लगी? तो कराची में भी इस चीज पर पाबंदी लगा दी जाए। शॉपर जो है वो माहौल दुश्मन है। आपने देखा ना बारिशों में हर के घर पे कचरा और पानी आ गया, उस कचरे के अंदर क्या था? 80% प्लास्टिक था। 80% नालों के अंदर आप कचरा निकाल रही हैं, आप कहीं भी गुजर ना लगे, आपने देखा बड़े बड़े कचरे। बिल्कुल, अभी जब बारिश हुई थी तो उस दौरान जब नालों की सफाइयां हुई थी प्लास्टिक तो इतना कचरा, इतना प्लास्टिक बैग्स उसमें से निकले थे। अगर इस चीज को हम यहीं पे कंट्रोल कर लेते तो जो आगे की तबाहियां हैं वो बच जाएंगी। तो एक बारिश का हमने फॉर्मूला आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया कि वजू का पानी जो बेतहाशा वेस्ट हो रहा है, नालियों में जा रहा है, तो जो हमने इकदाम किया छोटा सा, तो यही मीडिया का रोल बहुत अच्छा है कि मीडिया ने हम इस प्रोग्राम को वो किया। तो हम फैजान मदीना गए, वहां पर हमने वहां डिस्कस किया, हमने बताया कि पहले उलमा इकराम से पूछा कि पाक है या नापाक है पानी, तो वहां से इजाजत मिली कि हाँ ये पानी पाक है, आप इसको यूज कर सकते हैं पौधों के लिए। तो वहां से फैजान मदीना से माशाल्लाह ऑन द स्पॉट तमाम मस्जिदों के अंदर ये इकदाम इम्प्लीमेंट हो गया कि वजू के पानी को आप वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो है पौधों के लिए इसको यूज करेंगे। देन ये कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि यार घर में पीने को पानी नहीं है, हम पानी खरीद के लाते हैं और बोरिंग का पानी यूज करते हैं हम, तो पौधों में पानी कहाँ से डालें? तो आपने देखा होगा कि किचन के हवाले से जो किचन का जो लंच करते हैं हम, उस लंच करने से पहले तक जो पानी यूज होता है, जो हम सब्जियां धोते हैं, जो सब्जियां धोते हैं, अंडे बॉईल करते हैं, वो बहुत पानी होता है जो वेस्ट होता है। मेरी नजर में, मेरी जो ऑब्जर्वेशन की है मैंने, किचन का काम नहीं किया मैंने, पर मेरी जो ऑब्जर्वेशन है किचन में बेइंतहा पानी यूज होता है। तो उस पानी के जो बेसन होता है उसके अंदर नीचे हम अगर इतना केन लगा लें एक पानी का, जो खाना खाने से पहले जो पानी चीजें धुल रही होती है, चाहे गोश्त हो, मछली हो, सब्जियां हो, सब चीज धुल रही थी, वो पानी हम केन में सेव कर लें। देन ये कि जब आप लंच का टाइम हो जाए तो केन हटा के वो पानी जो क्योंकि जब बाद में आप साबुन यूज कर रही होती है उसको, उसको साफ करेंगे, वो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते गार्डन में, लेकिन उस पानी को आप किचन गार्डन में इस्तेमाल कर सकती हैं। जो आपने किचन के लिए, मैं बोलता हूँ लोगों को, जो आप धनिया की गड्डी बाहर से 20 रुपए का खरीद रहे हैं, घर में 5 रुपए में बेइंतहा धनिया लग सकता है। पुदीना के आप पौधे लगा ले घर पे, इतना पुदीना हो जाएगा आपका पूरा मोहल्ला खुद का फील हो जाएगा। पुदीना वो चीज है, उसकी शाख काट के आप पुदीना की लगा लें। शिमला मिर्च आप घर पे लगा सकती है, सलाद पत्ता आप घर पे लगा सकते हैं, पुदीना है, मिर्ची है, टमाटर है, ये सब चीजें औरतों को इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हम ये कोशिश करते हैं स्कूल कॉलेज। मेरी नानी को बहुत ज्यादा शौक है, मेरी नानी लगा रही होती है। तो मैंने यही कोशिश की लोगों को कि बाहर से पता नहीं किस तरीके से आ रहा, मुख्तलिफ चैनल्स पे दिखा रहा होता है कि तेजाब से धो रहे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं, गंदे पानी से ग्रो कर रहे होते हैं उसको। तो कुछ चीजें जो हम घर पे ग्रो कर सकते हैं, पुदीना, धनिया, अदरक आप घर पे यूज कर सकती है, लहसुन आप घर पे गमलों पे आराम से, सबके पास छत होता है, और जो मैंने आपको बताया कि आप पानी सेव कर सकती है किचन में किस तरीके से, वो आप उठा के उसको वहां गार्डन पे यूज कर लें आप। बिल्कुल अच्छा, पानी इस तरह से सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आपने बताया कि अब वो हीट वेव, अब देखिए गर्मियां शुरू हो गई है, तो जो पौधे पहले लगे हुए थे उनकी किस तरह से आप लोग जो है उसकी केयर करेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा तो हमारे पास पानी नहीं है कि हम पूरे कराची में पानी देते रहे, तो वो किस तरह से हमारी गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे, किस तरह से वो पानी जो है पौधों तक डाले? क्योंकि आपने देखा होगा कि हम गर्मी जब होती है तो हम लोग रोड पे अपने घर के बाहर ना पानी डाल रहे होते ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो वो भी एक चीज है, मैंने देखा है। वो भी मतलब कराची को पानी तो मिलना चाहिए ना रोड्स पे। बिल्कुल कराची को पानी मिलना चाहिए, और जैसे कि आपको ही पता है, हमें पता है कि डैम भर गए, लेकिन हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा। नलों में पानी नहीं है, बाकी आपने बिल्कुल ठीक है, बूंद पानी के लिए हमारी आवाम परेशान है। तो हर चीज की एक प्लानिंग होती है, तो दरख्त लगाने की भी वही प्लानिंग होनी चाहिए कि जहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर मौजूद हो वहां पर आप दरख्त लगाएं।
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بتا چکا ہوں میں مسجد کے پانی کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر گھر کے اندر آپ کی کیاری اور گملے وغیرہ آپ نے پوٹس وغیرہ رکھے ہوئے تو اس میں آپ کچن کا جو پانی سیو کیا ہوا وہ استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اگر بورنگ کا پانی آپ کے گھر پہ آ رہا ہے تو کچھ پودے ایسے ہیں جو کھارا پانی میں بھی چلتے ہیں, جیسے چیکو کا درخت ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں. سوجنا ہے وہ آپ کا چل جاتا ہے کھارے اچھا, کھارے پانی. سوجنا کا کیا فائدہ ہے؟ سوجنا کے کیا فائدے نہیں, 300 سے زائد فائدے میں آپ کو میں نے اکثر لگے ہوئے دیکھا ہے, اس لیے میں نے سوال کیا. سوجنا جو درخت ہے وہ مورنگا, اس کو انگلش میں مورنگا کہتے ہیں اور اردو میں سوجنا کہتے ہیں. اور بعض لوگ آج کل اس کو ڈاکٹر ٹری کے حوالے سے بھی پروموٹ کرتے ہیں. اچھا. سب سے بڑا فائدہ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا ہم نے ابھی پریکٹیکل کیا ہے حال ہی میں, کہ 15 فٹ کی شاخ کاٹ کے ہم نے لگائی اور 6 مہینے میں پورا درخت تیار ہو گیا. ماشاءاللہ. صحیح ہے. دین یہ کہ اس کی لمبی لمبی پھلیاں ہوتی ہیں, جیسے بھنڈی کے اندر, عربی کے اندر لس ہوتا ہے نا, گودے وودے کے لیے سیو ہوتا ہے, تو اس کی پھلیاں کھاتے ہیں ہم دال کے ساتھ, قیمے کے ساتھ. تو کھانے کی چیز ہے, سبزی ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کے روٹس کے, اس کے پھولوں کی چٹنیاں بنتی ہیں. اس کے پتوں کا نا پاؤڈر بنتا ہے. اس کے پتوں کو لے کے ہم سکھا دیں اگر تو اس کو 3 سے 4 دن سوکھنے کا پڑتا ہے. اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں تو پاؤڈر بن جاتا ہے. وہ آدھا چمچ پاؤڈر آپ صبح, آدھا چمچ شام میں لیتی ہیں, آدھا چمچ ایک ٹائم میں لیتی ہیں, کھانے کے اندر مکس کر دیتی ہیں, تو 300 سے زائد بیماریوں کا علاج اس کے اندر ہے. مورنگا کے اندر ڈاکٹر ٹری ہے وہ بیسیکلی. تو میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ مورنگا کے جو پتے ہیں وہ آدھا چمچ آپ کھانے کے اندر مکس کر لیں, اپنی جو سالن بنا رہی ہے اسی میں ڈال کے اسی میں مکس کر لیں اور ایزیلی یوز کریں. کیونکہ جتنا ہم آرٹیفیشل زندگی کی طرف جا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں, اتنا ہم بیمار ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. دوبارہ ہم نیچر کی طرف لوٹ آئیں گے جیسے پہلے کی لوگوں کی عمر 80 سال 90 سال 100 سال پلس ہوتی تھی, کیونکہ وہ نیچر سے قریب تھے, وہ ان فاسٹ فوڈس اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ کی طرف نہیں تھے. تو جتنا ہم نیچر سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہماری لائف. اچھا, پہلے زمانے میں یہ بھی تو ہوا کرتا تھا, گھر مطلب گھر کے قریب کھیت ہوا کرتے تھے, وہاں سے اپنے تازہ سبزیاں توڑی اور بنا لی, لیکن اب تو اس طرح کی رہی بھی نہیں. اب اس طریقے کی رہی نہیں ہے. اور اگر ہم انٹرسٹ, پہلے جب انٹرسٹ سندھ وغیرہ جاتے تھے, پنجاب سائڈ جاتے تو ایزیلی توڑ کے کھا بھی لیتے تھے, تو منع نہیں کرتا تھا. اچھا, اور اب جائیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ ہم لوگ کھیتوں میں کیوں جا رہے ہیں, وہاں پہ یا کوئی فاسٹ فوڈ چین نہیں ہے کچھ اس طرح کی. بالکل یہ ہماری چیزیں ہو گئی, بالکل چینج ہو گیا. پہلے بچے شام میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے, فٹ بال کھیلا کرتے تھے, ہاکی, اب وہ سب موبائل پہ کھیل رہے اپنے. تو بہت ضرورت ہے چیزوں کو تبدیل کرنے کی, ہمیں دوبارہ اپنے نیچر کی طرف لوٹنے کی. کھیل کود, اسپورٹس ایکٹیویٹیز, ہیلدی ایکٹیویٹیز. میں نے جو سوچا, میرے ڈومین میں جو کام تھا وہ پلانٹیشن. میں نے آج تک کرکٹ وکٹ بلہ وغیرہ نہیں پکڑا, کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں کی, پر میں نے جو اپنی ایکٹیویٹی گین کر دی وہ ساری ساری پلانٹیشن کے اوپر. تقریباً 2015 سے میں نے ایکٹیویٹی شروع کی, اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ مہینے کے اندر 2 سے 3 ایکٹیویٹیز میں اچھی ایکٹیویٹیز کر سکوں. ریسنٹلی کل میں نے ایک لیاقتآباد نمبر 2 کے اندر ایک ایکٹیویٹی کی ہے, جو پورے لیاقتآباد کے اندر آپ کو پتا ہوگا گلی وہاں تقریباً اتنی بڑی کہ 2 بائکیں ایک ساتھ نہیں گزر سکتی. تو وہاں تو درخت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا اس جگہوں پہ. تو وہاں ہم نے ایک اسکول دیکھا, نواب صدیقی اسکول نام تھا, علی خان اسکول تھا, وہاں پلے گراؤنڈ تھا. ہم گئے بچوں کے پاس, پیر والے دن ہم جب گئے وہاں پر تو بچوں سے اویئرنیس لی, باتیں کی کہ پھل کہاں سے آتے ہیں, تو بولی سبزی منڈی سے آتے ہیں. ان کو یہی نہیں پتا کہ پھل جو درختوں میں لگا کرتے تھے. چھوٹے بچوں کی باتیں کرو, ان سے ڈسکشن کی, ہم نے بات کیا. تو پھر ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کے اسکولس میں پودے لگائے کہ یہ بچوں نے انجوائے کیا ایکسیبیشن اپنے ہاتھ سے. یہ بھی ایک طرح کی ایکٹیویٹی, ہیلدی ایکٹیویٹی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کے بچوں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالا, اس میں کھاد ڈالا, پودے لگایا. پھر ہم نے ہر کلاس کے بچوں کو 2 پودوں کی اونرشپ دے دی, تاکہ ایک ہوتا نا لگایا فوٹو شوٹ کرا چلے گا, کچھ پتہ ہی نہیں بات میں ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ہم نے ان بچوں کو وہاں ان کو اونرشپ دی پودوں کی, اور بچوں سے بریفنگ لی ہم نے کہ آپ کیا جانتے ہو پلانٹس کے بارے میں. جس نے اچھا بتایا اس کو ہم نے اپریشیشن سرٹیفکیٹ دیا, کیونکہ حوصلہ افزائی جب آپ کسی کی کریں گے تو وہ آگے ضرور بڑھے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بس اس طریقے سے ہم کام کرتے رہتے ہیں, اور یہی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں اپنے حصے کا ایک پودا لگا لے. میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناؤں گا. اس حساب سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اگر کل قیامت نظر آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی کھجور کا جھاڑ ہو تو وہ بھی لگا دو, تمہارے رہ نجات کا ذریعہ. ایک ہمارے ملک کی خدمت بھی ہے, ایک ہماری جو آخرت ہے وہ بھی سنور رہی ہے, اور ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی. لوگ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اس کام سے. جہاں میں اگر کوئی تصویر لگا دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ, وہاں 100 کمنٹس اگر آتے ہیں, تو ایک پودے کے ساتھ تصویر لگاتا ہوں تو وہ 500 کمنٹس آتے ہیں. لوگ ان کو پتا ہے کہ اس پودے لگانے کا جو فائدہ جو ہے وہ امریکہ میں جو بیٹھے ہوئے ریحان صدیقی بھائی, جنہوں نے ہمیں ویژن دیا گرین پاکستان کا, ان کو بھی ہے. نجیب بھائی جو شکاگو میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بیٹھ کے مجھے آدھا گھنٹہ انڈورس کے, میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں بیسیکلی. تو نجیب بھائی مجھے وہاں شکاگو سے بیٹھ کے انڈورس پلانٹس کے حوالے سے بتاتے رہتے ہیں کہ انڈورس پلانٹس کتنی اہمیت ہے. جن کے گھر روڈ سائڈ ہیں, تم ایئر پولوشن میٹر لے کے جاؤ, ان کے گھروں میں چیک کرو کہ کیا وہاں پر وہ آ رہا ہے, آکسیجن لیول کیا ہے, اور پھر تم 5 انڈور پلانٹ رکھو, پھر جا کے چیک کرو کہ وہاں کی آکسیجن کتنی فریش ہے.
तो इस तरीके से वो ब्रीफिंग देते हैं। सायरा खान है वहाँ पर, ओवरसीज पाकिस्तानी का बहुत रोल है मुझे प्रमोट करने के अंदर। माशाल्लाह। तो उन्होंने वहां से बैठ के बहुत चीजें बताई, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर वो दरख्त मैं यहाँ पर लगाऊंगा, एक दरख्त यहाँ पर लगाऊंगा, तो फायदा जो है ओजोन लेयर को भी है, फायदा ग्लेशियर को भी है, फायदा साउथ अफ्रीका और अमेरिका में रहने वाले तमाम इंसानों की, क्योंकि दरख्त वो भाई चीज है जो तमाम कायनात को, जमीन का जेवर है और पूरे कायनात को, हर चीज को, चाहे जिन हो, क्योंकि बहुत सारे वाकई हमारे साथ ऐसे भी हो सकते हैं। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ आपको कि एक जगह मैं प्लांटेशन कर रहा था, तो वहां पर एक आंटी सामने से आ गई, तो मैंने कहा क्या करो बेटा, मैंने कहा आंटी नीम लगा रहा हूँ मैं, तो ये है कि आप जो है ना इसको पानी डाल देगा, थोड़ा देखभाल करिएगा। बेटा यहाँ पर नीम नहीं लगाओ। मैंने क्यों? नीम पे साया होते हैं। मैंने जी आंटी बिल्कुल साया होते हैं और अच्छे बड़े। नहीं बेटा, मेरे घर में जवान बेटी है, जिन भूत का साया होता है। मैंने आंटी कौन सी दुनिया में रह रही है, अब जिन भूत का साया होता है उसके ऊपर। तो मैंने उनके घर के आगे फिर एक फ्लावर ट्री छोटा सा लगा दिया। मैंने आंटी अब तो खुश है ना? आंटी ने हाँ मैं अब खुश हूँ। तो इस तरीके से भी लोगों को फेस करना पड़ता है। कोई बोलता है कचरा हो जाता है यहाँ पर, तो इन चीजों को भी फेस करना पड़ता है। और ये चीज तो है। अब आप ये देखिए कराची में जगह जगह कितना कचरे का ढेर लग चुके हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे, इस तरह के जो कचरे के ढेर है उनको साफ करे, वहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप लोग इस तरह के पौधे लगाएं तो ये भी एक अच्छी चीज है, मतलब कचरा भी साफ होता रहेगा, कराची को ग्रीनरी भी मिलती रहेगी। एक अच्छा कल्चर अभी डेवलप हुआ है रिसेंटली, मैं बताऊंगा कि जहाँ पर कचरा कुंडी होती है ना, लोग सफाई कराते हैं, फिर दोबारा कचरा कुंडी, लेकिन सफाई कराने के बाद वहाँ प्लांट्स लगा देते ना, तो सामने वाला कचरा फेंकने से भी गुरेज करता नहीं है। खूबसूरत जगह लग रही है, यहाँ प्लांट्स ना लगाओ। तो एक प्लांट्स के बेनिफिट ये भी है, जहाँ पर कचरा हो तो वहाँ पे सफाई करेगा, पौधे लगा दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा वो कचरा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन से कि आप लोग अगर इस तरह के जैसे कचरे साफ करें और कराची को मतलब एक अच्छा दिखाएं। जैसे आप लोग माशाल्लाह काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कराची खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हेल्दी कराची बनाना चाह रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर इस तरह की भी आप लोग मतलब इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देंगे, कचरा अगर जो है डिपार्टमेंट के साथ मिलके आप उनको साफ करवाएं और वहाँ पे अगर आप लोग इस तरह का काम करें तो ये भी एक अच्छी चीज है। मैं अपने पार्क के लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट से भी राब्ते में हूँ, पर उनका रोना यही होता है कि आज डीजल नहीं है, आज पैसे नहीं है, आज गाड़ी नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। हम बहुत, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे सही काम कर रहे होते ना, तो आज मैं घर पे बैठा होता, कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा होता या मास्टर्स कर रहा होता और उन चीजों में एंगेज होता। पर ये है कि हमारा सिस्टम ही जब सही नहीं चल रहा है, क्योंकि फिर कराची के अंदर मुख्तलिफ एनजीओ को आना पड़ा, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हो, चाहे लोगों के रोजगार के हवाले से हो, चाहे वो एनवायरमेंट के हवाले से हो। कुछ एनजीओ को आपने देखा होगा रोड कारपेटिंग कर रही है। किस शहर में, किस मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि वहाँ के आम लोग, स्टूडेंट्स आगे रोड कारपेटिंग करें? बस देख रहे हैं ना कराची की सूरत के हाल को देख रहे हैं, क्योंकि अपनी मदद आपके शादी करने, जब हमने गवर्नमेंट से सारी अपनी जो है तवक्कुआत जो खत्म कर ली, तो फिर जाहिर बात है एनजीओ से हम लोग अपनी तवक्कुआत बढ़ाएंगे कि हो सकता है यही हमारे मुल्क को जो है थोड़ा सा तब्दील कर दे, हमारे शहर कराची को, जो एक रोशनी का शहर था उसकी रोशनी छीन ली गई उस तरह की। अब तो जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट जो वो भी आपको बंद नजर आती होगी। शहरोज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए। शहरोज जो है उनको ग्रीन मैन ऑफ पाकिस्तान का लक़ब भी मिला है, मैं यहाँ पे ये भी आपको बता दूं। और जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा इनको भी अपनी दुआ में याद रखें। कोशिश करें अगर मेरे प्रोग्राम आज जो है हमारे नाज़रीन देख रही है, हमारे आज जो नई यूथ है, आप लोग इनके साथ जुड़े, कराची शहर को जो है रोशनों के शहर बनाया, उसको ग्रीनरी जो है कराची को दें, ताकि जो है जब कराची खूबसूरत नजर आएगा, हेल्दी नजर आएगा, हम सबके लिए फायदा होगा। इसी के साथ अपनी मेजबान निदा सबको दे इजाजत। दुआ में याद रखिए मुझे, मेरी पूरी टीम और हमारे जो गेस्ट आते हैं उनको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। सर्फ एक्सेल दागों का